हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी या अनदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 20th फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, disengagement at Pangong Tso completed. India and China have completed disengagement on both banks of Pangong Tso Lake in eastern Ladakh, and the 10th round of Corps Commander talks are to be held at Moldo on the Chinese side around 10 a.m. on Saturday to discuss pullbacks from other friction areas, a defense official said on Friday. So, पैंगोंग सो लेक के दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। इंडिया और चाइना दोनों ने अपने अपने ट्रूप्स को पीछे बुला लिया गया है और बॉर्डर से हटा दिया गया है। इसके बाद 10th कॉर्प्स कमांडर टॉक्स जो मीटिंग होती है वो मोल्डो में होगी, चाइना में। वहां पे होगी 10 बजे सैटरडे को। वहां पे ये डिस्कस किया जाएगा कि और भी जो दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स है, फ्रिक्शन एरियाज है जहां पे अभी भी ट्रूप्स खड़े हैं, वहां से भी डिसएंगेजमेंट कब किया जाएगा वो बातचीत की जाएगी। Disengagement was fully completed as per an agreement and had been jointly verified by both sides, a second official said. So disengagement दोनों तरफ से fully complete किया गया है और ये पूरा agreement किया गया है और jointly verify किया गया है दोनों पार्टी की तरफ से, इंडिया और चाइना की तरफ से। All land all landforms have been restored as they existed before April 2020 और वहां का जो लैंड जैसे था अप्रैल 2020 से पहले जैसे था पूरी की पूरी वैसे ही कर दी गई है। नेक्स्ट, 4 PLA soldiers died in Galwan. China on Friday said for the first time that it had lost 4 soldiers, including a battalion commander, in the June 15 last clash in the Galwan Valley, breaking its silence over the number of casualties suffered by the People's Liberation Army. तो चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 4 जवानों की मौत हुई है, उनमें से एक बटालियन कमांडर थे। तो ये पहली बार, वो फाइट के बाद पहली बार चाइना ने ये डिस्क्लोज किया कि उनकी कितनी कैजुअलिटी हुई है। The PLA said the announcement made 8 months after the clash was aimed at honoring the soldiers and setting the record straight after it accused India of distorting the truth and slandering the Chinese border troops. तो चाइना ने कहा कि ये 8 मंथ बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया ताकि उनके सोल्जर्स को ऑनर दे सके। 20 Indian soldiers died in clash which marked the worst violence on the border since 1967. 1967 के बाद ये सबसे वर्स बॉर्डर क्लैश था। यहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स की मौत हुई है। नेक्स्ट, 1 crore vaccine doses given in 34 days. India has surpassed 1 crore cumulative COVID-19 vaccine doses administered to healthcare and frontline workers as on Friday, the Union Health Ministry said. Friday को 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस क्रॉस हो चुकी है। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है इंडिया में। The country took 34 days to achieve the landmark and is the second fastest in the world to achieve this after USA. यूएसए के बाद इंडिया सेकंड कंट्री है जिन्होंने ये लैंडमार्क को अचीव किया। 8 states accounted for 57.47% of the total doses administered across the nation. पूरे इंडिया में 57.47 टोटल डोज दिया गया है 8 स्टेट्स में, जिसमें से उत्तर प्रदेश अलोन अकाउंटेड टू 10.5%। उत्तर प्रदेश में 10.5% है एंड अदर स्टेट्स इंक्लूड महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, और इन सब जगहों पे डोजेस दी गई। 7 states accounted for 60.85% of second doses और 7 स्टेट में 60.58% सेकेंड डोज दिया गया है, जिनमें से तेलंगाना लीड कर रहा है 12% शेयर के साथ। नेक्स्ट, EU envoys call for early polls in Jammu and Kashmir. The European Union envoys who studied the ground situation for 2 days in Jammu and Kashmir on Friday have praised certain measures taken post August 5 in the Union Territory, but called for early organization of the Legislative Assembly elections, which remains in a suspended animation since 2018. So, यूरोपियन यूनियन के एनवॉयज
जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कैसा है, वहाँ पे सब कैसे चल रहा है। तो उन्होंने आके देखा कि वहाँ का सिचुएशन ठीक है। 2 दिन उन्होंने पूरा सिचुएशन को देखा और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है, इसे जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। जो बाद में होने वाली है उससे पहले कर देना चाहिए, जो 2018 से बैंड था, सस्पेंडेड था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेड to likely file appeal against Khan arbitration award. The center is likely to file an appeal against the 1.4 billion international arbitration uh, award won by Khan Energy in a tax dispute. So Khan Energy ने जो 1.4 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता था इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया सोचे कि उसके अगेंस्ट अपील किया जाए। Even as the issue did not fight during 2 days of the talks, the Finance Secretary held with the company officials to look for resolution, sources with knowledge of the matter said. So, इसके बीच इंडिया के और कांस एनर्जी के लोगों के बीच बातचीत हुई। फिर भी उन दोनों के बीच में जो टॉक्स हुई है वो बस फाइनलाइज तक नहीं गई। कान एनर्जी को उसके पैसे चाहिए तो चाहिए, और इंडिया सोच रही कि अब अपील करेंगे। Soon after the second meeting, in as many days between Khan CEO Simon Thompson and Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey ended, a person informed of the development said the government intend to defend its sovereignty right in taxation and will file an appeal against an international tribunal ordering India to return $1.4 billion to the British firm. So सीईओ, कान के सीईओ और इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों के बीच बातचीत हुई। फिर भी ये बातचीत कोई नतीजे पे नहीं ले गई और इंडिया का ये कहना है कि इंडिया अपना सॉवरेन राइट जो है, टैक्सेशन राइट इन टैक्सेशन जो सॉवरेनिटी है, उसको बचाने के लिए वो लोग अपील करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग को। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में वो लोग फाइल करने वाले, अपील करने वाले कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, अपने आप को डिफेंड करने वाले। और वहां पे कान एनर्जी ऑलरेडी जीत चुकी है, तो ये फिर से एक और अपील होगा जिसमें कान एनर्जी को लड़ना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट, इंडियन आईटी वर्कर्स टू बेनिफिट फ्रॉम यूएस इमिग्रेशन बिल in a major move that will benefit thousands of Indian IT professionals in America. The Biden administration has introduced an immigration bill in Congress, which among other things proposes to eliminate the per capita cap for employment based green card. So जो बाइडेन ने इमिग्रेशन बिल पास किया कांग्रेस में, और वो इमिग्रेशन बिल के तहत ये देखा जा रहा है कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स जो अमेरिका में है उन लोगों को ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि ये पर कंट्री कैप फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड जो है उसे एलिमिनेट करने वाली है। तो जो एक ग्रीन कार्ड दिया गया था जिसके आधार पे ये बताया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ यूएस सिटीजन जो यूएस बॉर्न है उनको ही जॉब मिलेगा, इमिग्रेशन को नहीं मिलेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने करके गए थे। तो जो बाइडेन ने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करके उन्होंने खुद का इमिग्रेशन बिल पास किया जिसमें हर एक इमिग्रेंट को भी जॉब मिलेगा। तो ये इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला बात है और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। The US Citizenship Act of 2021 proposes a pathway to citizenship to 11 million undocumented workers, elimination of per country quota for employment-based green cards, and base and work authorization for dependents of H-1B foreign workers. So, यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021 के आधार पे 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को सिटीजनशिप दी जाएगी। पर कंट्री कोटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन ग्रीन कार्ड को एलिमिनेट किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, और H-1B फॉरेन वर्कर्स के ऊपर ऑथराइजेशन, जो डिपेंडेंट है उनको वो H-1B वीजा दी जाएगी। नेक्स्ट, यूएस रेडी फॉर टॉक्स ऑन ईरान डील. The Biden administration has said that it will participate in talks with Iran with a view to reinstate the Joint Comprehensive Plan of Action.
for the Iran nuclear deal, which has been unraveling since the US departure from the deal in 2018. तो 2018 में जो ईरान और अमेरिका बीच में जो डील था वो 2018 में खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर डील से बाहर कर लिया, विड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई थी कि वो लोग न्यूक्लियर को कभी यूज नहीं कर सकते। सो फॉर दैट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ बातचीत की। जो बाइडेन ने कहा कि हम सैंक्शंस को रिमूव कर देंगे, और सैंक्शंस रिमूव करने के बाद हम लोग फिर से न्यूक्लियर डील में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना, हमारे कुछ कंसिडरेशन है वो आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो ईरान ने कहा था कि हम कोई कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, आप अगर हमारी कंसिडरेशन मान लोगे तो फिर हम लोग ये डील को कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी की नहीं सुनेंगे, जितनी भी सैंक्शंस लग जाए फिर भी हम लोग करेंगे। The Biden administration sent a letter to the UN Security Council withdrawing letters from the Trump administration that had attempted to reinstate UN sanctions on Iran via step back process. The Trump move was not recognized by other members of the then Security Council. तो ट्रंप ने जो ये मूव सैंक्शंस किए थे वो सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी मेंबर्स ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर सेंड किया, कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रीइंस्टेट किया गया था, जो सैंक्शंस लगाई गई थी, वो जो लेटर्स है उसे विड्रॉ कर ली जाए, और हम लोग ईरान के साथ फिर से एक डील करेंगे और ईरान के साथ बातचीत करेंगे, तो सैंक्शंस को हटा दिया जाए। नेक्स्ट, बाइडेन admin says is ready for talk with Iran on nuclear deal. US President Joe Biden on Friday drew a sharp contrast on the foreign policy of much derided President Donald Trump and urged democracies to work together to challenge abuses of autocratic states such as China and Russia. तो यूएस जो बाइडेन ने ईरान के न्यूक्लियर डील बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो चाइना और रशिया है जो उनको टक्कर दे रही है, उनके साथ भी, उनके अगेंस्ट भी हमें काम करना पड़ेगा। हम लोग दुश्मनी नहीं चाहते, वॉर नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि चाइना अपना दबदबा दिखाती रहे। वो लोग जो इंडियन ओशन रीजन में जो अपना पावरफुल दिखा रही है कि हम लोग बहुत पावरफुल है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये चाइना नहीं कर सकती। चाइना किसी को डरा नहीं सकती। सो चाइना और रशिया जो अब्यूज कर रहे हैं, अपने ऑटोक्रेटिक स्टेट्स का जो अब्यूज कर रहे हैं, उसको सामने लाना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना पड़ेगा। द बाइडेन व्हाइट हाउस इज रिव्यूइंग चाइना पॉलिसी अक्रॉस ऑल फ्रंट्स, इंक्लूडिंग चाइना's military buildup and trade policies, its actions in Hong Kong, treatment of minority Uyghurs in Xinjiang, and its handling of the coronavirus outbreak. तो जो बाइडेन ने कहा कि वो लोग चाइना की जो पॉलिसीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही है, इंक्लूडिंग जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, ट्रेड पॉलिसीज हो रहा है, वो सब, हांगकांग के अगेंस्ट जो एक्शंस लिया जा रहा है चाइना की तरफ से वो सब, माइनॉरिटी ग्रुप्स को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो, और कोरोना वायरस को कैसे हैंडल किया जा रहा है वो, इन सभी चीजों को, इन सभी पॉलिसी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ध्यान से देख रही है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो उस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सवाल उठा सके और उन लोगों को हमेशा नीचे में रख सके। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 20 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस इज व्हाट हैपेंस आफ्टर यू हैव सर्वाइव्ड ऑल ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट्स। तो सक्सेस कब आता है? सक्सेस तब आता है जब आपका जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, जितना भी आपका फेलियर है, वो हर एक चीज को आप सरवाइव करके ऊपर आते हो। जब आपने कोई एक चीज पाने के लिए शुरू किया चलना, तो आपके रास्ते में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आते हैं, आपके रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें आती है, लेकिन आप फिर भी वो सब रुकावटें को पार करके आगे बढ़ते रहते हो।
उस रुकावट को पार करते करते बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, कई कई जगह पे आप फेल भी हो जाते हो, कई कई जगह में आपको कुछ खोना भी पड़ता है, फिर भी आप रुकते नहीं हो। आप हर एक चीज़ को सरवाइव करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। कुछ खतरे भी आते हैं, उसको भी आप खेल जाते हो, फिर भी आगे बढ़ते हो। ये आगे बढ़ते बढ़ते आप एक दिन सक्सेस के पास आ जाते हो, सक्सेस को हासिल कर लेते हो। तो सक्सेस क्या है? सक्सेस आप जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है, फेलियर है, ऑब्स्टेकल्स है, ये सबको सरवाइव करके जब आप आगे बढ़ के सक्सेस को हासिल करते हो, तभी आप सही मायने में सक्सेसफुल कहलाते हो। और सक्सेस तभी होता है जब आप ये सब चीज़ों को पार करके आते हो। सक्सेस आपको खड़े बाजार में हाथों में नहीं दिया जाता, कोई आपको ला के नहीं देता। सक्सेस सक्सेस आपको मेहनत करके अर्न करनी पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।